Hello everyone, welcome back. Welcome to Beast. I welcome you all here. So in our previous lecture, we discussed the economy section of 2025 of Central Armed Police Force का जो exam हुआ था एसेंट कमांडेंट का, right? And in this lecture, we will be doing the again the economy section of 2024, right? So we have so far we have discussed your economy section, your geography section, your environment section, right? And what basically we are doing is we are trying to decode the language of UPSC, right? We are trying to decode that how UPSC set traps, how and how sometimes with common sense, right, we can solve questions, right? We are basically trying to develop that MCQ aptitude, basically, right? And also trying to decode the key themes कि कहाँ से बार बार questions आ रहे हैं, right? So now let's start. So हमने ये सब questions already discuss कर लिए हैं. Now let's start with economy, right? So yes. So first question was, consider the following statements. The 15th Finance Commission used fiscal efforts as an criteria for horizontal devolution, unlike the 14th Finance Commission. Both the 14th and 15th Finance Commission used pre 2011 demographic variables as a criteria for horizontal devolution, right? तो इसके लिए हमें फाइनेंस कमीशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ फाइनेंस कमीशन फर्स्ट, राइट? तो अभी कौन सी फाइनेंस कमीशन चली है? अभी तो 16th फाइनेंस कमीशन आ गई है. एंड दे टॉक अबाउट योर डेवोल्यूशन अमंग द स्टेट्स की कैसे जो है डिवाइड करना है फंड्स को, राइट? सो इसमें क्या पूछा गया है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है यूज फिजिकल एफर्ट्स. It is true that they use fiscal efforts as an criteria for horizontal devolution unlike the 14th फाइनेंस कमीशन. तो अब हमने पढ़ना क्या है कि 16th फाइनेंस कमीशन में भी ऐसा कुछ है. सो 15th फाइनेंस कमीशन ने अब इसको जो है रिमूव कर दिया, राइट? इट हैज़ बीन रिमूव्ड, जो फिजिकल एफर्ट है, राइट? सो स्टेटमेंट 1 is true. Both 14th and 15th Finance Commission used pre-2011 demographic variable as a criteria for horizontal devolution. This statement is also correct. It is completely थोड़ा factual है, इसमें उतना common sense नहीं you can use, right? इसमें तो knowledge होनी चाहिए. Knowledge is your primary thing, right? So now next question. Next question is this. Burden of a tax on a commodity is independent of who, buyer or seller it is explicitly imposed upon, right? अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी टैक्स है, अब दैट इज़ इंडिपेंडेंट, राइट? वो तो कलेक्ट होना ही है. जैसे जीएसटी है, अब उसको चाहे वो आप कस्टमर पे लगाओ, होल सेलर पे लगाओ, दैट विल बी कलेक्टेड, राइट? इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, राइट? ऑफ बायर और सेलर it is explicitly imposed upon, right? So statement 1 is true. Burden of a tax on a commodity depends on this loop of demand and supply curves, right? It is also correct, right? It depends on your demand and supply, right? So C is your correct answer, right? Both 1 and 2, right? Now next question. In recent years, which one among the following in the source of demand in the Indian economy सोर्स ऑफ डिमांड इन द इंडियन इकोनॉमी इन डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हमने, ठीक है जी? तो इसका अगेन देखो ना, अब इसमें तो यार फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि भाई देखो ना, अब जैसे प्राइवेट कंजम्पशन है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट कंजम्पशन है, इज नेट एक्सपोर्ट्स जो है, सो दिस सी इज योर करेक्ट आंसर, राइट? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन देखो ना, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अगेन देखो ना, फाइनेंस कमीशन से ये क्वेश्चन है कि भाई जो परसेंटेज ऑफ वेटेज असाइन टू फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी इन द डेवोल्यूशन फार्मूला कितना है भाई फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का? इट इज़ 10%, राइट? अगर आप 16th फाइनेंस कमीशन में भी देखोगे इट इज़ अगेन 10%, राइट? तो हमने और भी देखना है जितने भी और जो पार्ट है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन, चाहे पॉपुलेशन, राइट? जो और जो इसके जो एरियाज़ है उसमें कितना असाइन हो रहा है, राइट? So now next question. Next question is, consider the following statements regarding the instruments of monetary policy, right? So monetary policy की important topic हो जाता है, बार बार इसमें questions आ रहे हैं, चाहे CDS हो, UPSC हो, चाहे CAPF हो, right? तो इसमें क्या लिखा, इसमें क्या पूछा गया? The central bank can increase money supply by increasing bank rate. तो what it is saying that for example if bank rate is 4%, तो इन्होंने increase किया मान लो 4.25%, तो it will increase the money supply. तो आपको लगता है कि ऐसा होगा?
ऐसा नहीं होगा राइट. व्हेन द बैंक रेट विल इंक्रीज, तो इंटरेस्ट रेट्स जो बैंक आगे लोगों को लोन देगा, दैट विल बी इन हायर इंटरेस्ट रेट, दैट विल डिक्रीज the money supply, right? So statement 1 is wrong, statement 1 is wrong, statement 1 is wrong, right? Now we have A and B, right? तो हमने इनको एलिमिनेट करते चलना है, right? Central bank can increase the money supply by purchasing securities from the public. Yes, it is true. जब हम सिक्योरिटीज लेते हैं पब्लिक से तो क्या करते हैं, हम पैसा देते हैं लोगों को, राइट? वापिस, सो इट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई, राइट? द सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग CRR. यस, इट इज़ ट्रू. यही तो बात कर रहा था हम ऊपर, राइट? सो 2 and 3 इज योर करेक्ट आंसर, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी. नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, तो इसमें क्या पूछा गया है कि भाई, अच्छा जी, NLP वॉज लॉन्च इन 2022. अच्छा, इसमें पूछा गया है कि नॉट करेक्ट, राइट? तो इट इज़ ट्रू, तभी लॉन्च हुई थी. NLP वुड इम्प्रूव द competitiveness of Indian goods, right? It is also true. NLP would enhance economic growth and increase employment opportunities. Again true, right? NLP would provide an opportunity for deleveraging balance sheets and providing fiscal space for investment in new infrastructure assets. तो देखो ना, यही तो दैट कॉमन सेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिस्टिक्स एंड हेयर इट इज़ व्हाट टॉकिंग है. देखो ना, यहाँ पे इट इज़ जेनरिक दैट यहाँ लॉन्च हुई, इट विल इंडियन गुड्स के हमें कम्पिटिटिव हमें करनी है, राइट? हमने एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करनी है. अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि वी डिलीवरेजिंग बैलेंस शीट्स प्रोवाइडिंग फिजिकल स्पेस फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, राइट? सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड इट इज़ बेसिकली नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की इन्होंने डेफिनेशन दे दिया, राइट? So this statement is wrong and this is the correct answer, right? Consider the following statements regarding public goods and externalities, right? Again, conceptual question, right? Conceptual question, इसमें conceptual depth आपकी होनी चाहिए. दैट इसमें क्या पूछा है कि भाई, जो आपके नॉन राइवलरी and non-excludability are two characteristics of your public goods. For example, अब जैसे public goods क्या होते हैं? What are public goods? Public goods are basically जो public के लिए open to all है, right? Public goods कैसे होते हैं? जैसे bridges हो सकते हैं, roads हो सकती है, your washrooms can be there, right? Your toilets can be there. अब देखो ना, उसमें नॉन राइवलरी है. ऐसा तो नहीं हो सकता कि यू कैन गो और दूसरा बंदा कोई नहीं जा सकता, या फिर किसी को आप वहाँ से बाहर कर दोगे, राइट? यू कैन नॉट यूज़, राइट? ऐसा तो नहीं हो सकता. और किसी बिटवीन टू ऐसा राइवलरी भी नहीं है, राइट? यू ऑल कैन यूज़ दैट, राइट? पब्लिक गुड, वही तो पब्लिक गुड है, राइट? सो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू. मार्केट, अब स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, this one is gone and this one is gone, right? We have now two options. Market can provide the optimal amount of a good in the presence of externalities. What are externalities? देखो ना, जो भी कोई कंपनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ कोल स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी, फॉर एग्जांपल, राइट? अब दे आर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मार्केट कैन प्रोवाइड ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ गुड. ये तो ट्रू है, बट इसमें क्या पूछा कि इन द प्रेजेंस ऑफ के एक्सटर्नैलिटी. अब स्टील तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट व्हाट दे आर डूइंग इन द साइड लाइन, CO2, देखो ना कितना वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं. सो इट इज़ नॉट ऑप्टिमल गुड, राइट? इट इज़ नॉट ऑप्टिमल, राइट? सो स्टेटमेंट 2 इज़ योर इनकरेक्ट, राइट? सो A इज़ योर करेक्ट आंसर, राइट? Now next question is, population of the year 2011 was first introduced in the tax devolution formula for sharing union tax revenue with the states by, again factual, again finance commission. थर्ड क्वेश्चन देखो ना, सेम ईयर में फाइनेंस कमीशन से ही आ गया. इट इज़ 14th फाइनेंस कमीशन, राइट? और एक क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है क्योंकि अभी जो नया जो है सेंसस पॉपुलेशन अभी आया नहीं है. दैट विल बी इन द नेक्स्ट ईयर, राइट? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कीम से क्वेश्चन है. हमने कल भी बहुत सी स्कीम्स डिस्कस की थी, दैट हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द स्कीम्स, राइट? देखो ना, what these things are, जो कि भाई the options are given in some way, the options are given in some language and we are decoding that. This is basically very secondary, right? First is your primary. ऐसा नहीं सोचना है अपने कि भाई इसी बेसिस पे you can solve papers, you can solve questions, right? This is not the way, this is the last resort, right? और ये एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आई नो, बट आप इस पर सोली लाइट नहीं कर सकते कि अब जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, पूछेगी कि आपको यही नहीं पता कि अब लॉन्च कब हुई है, अब इसमें व्हाट कॉमन सेंस यू विल यूज़, राइट? इट ग्रांट्स, अब ये ट्रू है, इट इज़ ट्रू, इट ग्रांट्स लोन्स अप टू 15 lakhs फॉर इनकम जनरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर्स, राइट?
सो अगर आपने पढ़ा होगा जैसे इसमें शिशु है, तरुण है, किशोर प्लस है, अप टू 20 लाख है, राइट? सो बी इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट एंड अंडर दिस स्कीम ओनली द टर्म लोन रिक्वायरमेंट कैन बी मेट, नॉट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। देखो ना, इसमें दो इसके जो है आंसर थे, राइट? यूपीएससी फर्स्ट टाइम आई गेस दो इसके जो आंसर बताए गए थे, बी एंड सी, एंड देर इज नो इंसिडेंस ऑन कोलेटरल फॉर द सेंक्शन ऑफ लोन, राइट? तो इट इज ट्रू, I mean not correct is your B and C, right? Now next question. Next question है जी, what were the main reforms undertaken under न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच आर LPG रिफॉर्म्स, राइट? हम पढ़ते भी है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, राइट? जो बहुत ही एक मतलब एक वाटरशेड मूवमेंट था इंडियन इकोनॉमी में, राइट? उसमें क्या हुआ था, अब जैसे लिबरलाइजेशन, एलपीजी की हमने बात की, व्हाट इज़ योर ट्रेड लिबरलाइजेशन हुआ, यस, 1:2, दिस इज़ गॉन एंड दिस इज़ गॉन, राइट? पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, प्राइवेटाइजेशन, राइट? दिस इज नो, अब इसके लिए आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, राइट? दिस इज योर प्राइवेटाइजेशन, राइट? अब क्या हुआ, पॉवर्टी एलिवेशन, इज इट देयर समवेयर पॉवर्टी एलिवेशन, राइट? सो दिस इज रॉन्ग। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये तो 19 5 year प्लान में शायद हो गया था, महल नोबिस प्लान समथिंग, राइट? सो दिस इज योर 1 and 2 इज योर करेक्ट आंसर, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ना, अब वहाँ पे हमने किया था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, एंड यहाँ पे इसका क्वेश्चन ही आ गया, दैट नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, राइट? तो उसमें क्या पूछा है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एस्टिमेट्स दैट फॉर द पीरियड ऑफ 2002 to 2025 द टॉप 3 सेक्टर्स, फैक्चुअल टॉप 3, जब जहाँ भी फैक्ट्स आ गया, यू शुड बी वेरी एक्टिव। 3 sectors in terms of monetization potential are roads, railways, oil and gas pipeline. Under the NMP, the instruments to be used for asset monetization include public-private partnership, right, and infrastructure investment trust, right? This statement is generic. This statement is true. 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। 1 पढ़ेंगे ना, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल अब इतने इसमें फैक्ट्स थे, अगर आप देखेंगे, क्या पता ये स्वैप कर दी हो, क्या पता ये स्वैप कर दी हो, क्या पता ये स्वैप कर दी हो। अब इसमें क्या स्वैप किया था इन्होंने, ये स्वैप किया था ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। दिस इज बेसिकली योर पावर सेक्टर, राइट? सो इसका जो आंसर है दैट इज 2 ओनली, राइट? सो दिस इज गॉन एंड दिस इज गॉन, राइट? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटेल कोर इन्फ्लेशन, राइट? सो देखो ना, अब इसमें थीम हमने साथ साथ लेके चलना है। अब जैसे जो कोर थीम क्या होगी इसमें, इन्फ्लेशन, कल दिन इन और जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है, डिस इन्फ्लेशन है, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? सो इसमें क्या पूछा गया है, रिटेल कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड एक्सक्लूडिंग विच ऑफ द फ्लोइंग, राइट? सो सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, कि जिसमें दैट इज़ द मेन इज़ योर मेन जो इन्फ्लेशन बताती है, जिसमें हमने सब जो चीज़ें हैं ली होती है, इंक्लूडिंग योर फूड एंड बेवरेजेस, योर फ्यूल एंड लाइट। तो उसमें क्या पूछा गया, जो रिटेल कोर इन्फ्लेशन है उसमें हम क्या एक्सक्लूड करते हैं, इट इज़ योर फूड एंड बेवरेज एंड फ्यूल, राइट? 1 and 2 इज़ योर करेक्ट आंसर, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स? सो इसके हमने बहुत से क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, राइट? योर रेवेन्यू रिसीट्स, योर कैपिटल रिसीट्स, योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमको इसका आइडिया होना चाहिए, राइट? इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल रिसीट्स, राइट? सो व्हाट बेसिकली आर कैपिटल रिसीट्स, जिसमें क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट के जो एसेट्स है, राइट, दे आर डिक्रीजिंग, एंड जो लाइबिलिटीज़ है, राइट, दे आर इंक्रीजिंग। सो इसमें क्या है, डिस इन्वेस्टमेंट रिसीट्स, यस, एसेट्स आर डिक्रीजिंग, राइट? 1:2. Second is your interest payment. These are under revenue receipts, right? Then is your net market borrowing, liabilities increasing. So 4, 1 and 4, right? So 2 is there, right? 1 and 3, again 1, 3 and 4 is your correct answer, right? Small savings are also there, right? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो कोई, जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बैंक्स हैं, लोग वहाँ पे जो है पैसा जमा करते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ लाइबिलिटी, राइट? आपको पैसा पब्लिक फंड जैसे वापस करनी है, राइट? जो प्रोविडेंट फंड्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के, राइट? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन असेंडिंग मैनर्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2023 एंड 2024, राइट? सो अगेन देखो ना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें तो व्हाट वी कैन डू इज दिस इज योर सी, राइट? इसमें करना क्या था हमने, जो है असेंडिंग ऑर्डर, लोएस्ट इज योर कस्टम। अगर हम देखो ना पढ़ेंगे कभी जो है
योर दिस, देखो ना एक कॉइन सा बना होता है कि रुपी गोज इन रुपीज़ कम्स आउट, राइट, रुपी गोज टू रुपीज़ कम्स इन, राइट। सो दिस इज़ योर सी इज़ योर करेक्ट आंसर, राइट। इसके हमने बहुत से क्वेश्चन कर भी दिया कि भी जो हाईएस्ट शेयर है रुपी गोज टू इज़ वेयर, दैट इज़ इंटरेस्ट पेमेंट्स, राइट। तो हम ये क्वेश्चंस 2-3 बार कर चुके हैं, राइट। सो इससे क्या पता चलता है कि बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आईआर से क्वेश्चन था, राइट, उस साल से, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द आउटकम्स ऑफ टॉक्स बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई हेल्ड इन 2024 राइट। अब इसमें आई कैन टेल यू दैट हाउ समटाइम जो कॉमन सेंस वी कैन यूज़, राइट। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने नहीं पढ़ा, लेकिन देखो ना अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। अब जैसे बोथ कंट्रीज साइन एन एग्रीमेंट ऑन इंटरलिंकिंग ऑफ डोमेस्टिक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, यस हमने सुना भी है, अगर मतलब नहीं भी सुना मतलब जेनरिक है कि भाई क्या पता हो सकता है। एन MOU वॉज साइंड ऑन कॉपरेशन इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो ये तो हम बात कर रहे हैं, दिस स्टेटमेंट कैन बी ऑल्सो ट्रू, राइट। अब 3 पढ़ते हैं, बोथ कंट्रीज एग्रीड दैट अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी शैल बी साइंड इन द नेक्स्ट मीटिंग। आपको लगता है भाई इतनी राउंड्स ऑफ मीटिंग करनी पड़ती है भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए? 3 इज़ योर रॉन्ग, 3 को काटो, 3 को काटो, दिस इज़ योर आंसर 1 and 2, राइट। So this is how sometimes we can solve your questions, right? So अब इसमें क्या पूछा है, which of the following is not one of the pillars of foreign trade policy? Again तो ना इसमें common sense we can use, right? So अगर हमने यही पढ़ा था ना मोस्ट फेवर नेशंस, आपको लगता है कि भाई अगर आपने WTO का भी ऐसे ही पढ़ा होगा, WTO में ये बात होती है मोस्ट फेवर नेशंस की, राइट। आपको लगता है कि इंडियन जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें मोस्ट फेवर नेशंस का भी कुछ ऐसी चीज़ आएगी? देखो ना, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलेब्रेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करनी है, एमर्जिंग एरिया स्ट्रीम लाइनिंग हमको ये करना है भाई, ठीक है जी। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर, राइट। So now next question. Yes, this. Which of the following two organizations are part of टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर, राइट। अगेन इसको भी हम कॉमन सेंस ही सॉल्व करेंगे, राइट। अब टैक्स की बात हो रही है, सम इकोनॉमी रिलेटेड थिंग इज देयर हैपनिंग, अब इकोनॉमिक कॉपरेशन, अब यहाँ पे क्या है, आसियान, देखो ना नैरो है, आसियान तो रीजन स्पेसिफिक है ना यार, अब आसियान थोड़ा होगा, काटो इसको, आसियान इज देयर अगेन, राइट। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड आसियान, अगेन देखो ना आसियान, दिस सी UNDP एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, सी इज़ योर करेक्ट आंसर, राइट। क्योंकि देखो ना ब्रॉडर है, अब UNDP इज़ ब्रॉडर, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, OECD इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, अब वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, राइट। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर, राइट। आई गेस it is end. So now I guess it's enough for the day. I hope these lectures were helpful for you. Thank you so much. Thank you all.